اور پھر ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں یہاں پہ عدالت کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ آئے، 2.5 مہینے سے ہم لوگ متواتر آ رہے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، خواتین و حضرات کی لسٹ جو کہ اس جمعرات کی ملاقات کی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تحریر کر کے اور ہمارے وکلاء حضرات کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو سیاسی رفقا کار ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جن لوگوں کا کہیں گے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہاں پہ میرے ساتھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بحیثیت فوکل پرسن جیل کے یہاں پہ حکام کو اور لوگوں کو دیں گے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جو یہاں پہ اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، انٹیلیجنس والوں کے کہنے پہ، کس کے کہنے پہ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے دونوں بچوں سے انہوں نے تقریباً پچھلے 2.5-3 مہینوں سے بات نہیں ہونے دی۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات، ان کی باقی بہنوں کی ملاقات انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کہیں پہ جیل مینیول میں نہیں لکھا کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوں۔ اور سو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ میں بھی یہاں پہ جیل کی جو مسجد ہے، وہاں پہ جو چوکی کی مسجد ہے، ادھر زور کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد مجھے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ یہ کیسے اسلامی مملکت خدا داد پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ پولیس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نمازیوں کا رستہ روکتے ہیں، مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں۔ جہاں پہ پولیس یہ کام کرے تو پھر پیچھے خواتین و حضرات کیا چیز رہ گئی؟ جہاں پہ ایک میرے دل میں تو وزیر اعظم ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو عید کی نماز نہ پڑھنے دے تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جیل کے اندر سارا کنٹرول ان کا، اور ایک مسلمان شخص کو وہ نماز نہ پڑھنے دیں، ان کو یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں، توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں، اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ جی شبلی فراز صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کے وہ اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں۔ اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا
तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक सिलसिला चल निकला है जिसमें कि ऐसी ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहाँ पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं उनको अदालतों ने उनको सजा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। नहायत ही अफसोसनाक, क्या शर्मनाक बात है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो इस मुल्क में दो निज़ाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं। और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहाँ पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहां पर फोन कमरों से बरामद होते थे और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो, हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है।
कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे। और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। जी प्लीज प्लीज। ये सवाल से पहले सॉरी, एक मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहिबजादा हामिद रजा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलूचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफिले के साथ जा मिले, और जहाँ पे धरना दिया हुआ है वो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए गए हैं। और वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे। और यही चीज आप देखें कि वो मोहसिन नकवी का पिछले साल स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान एक सिर्फ SHO की मार है, तो किधर है वो SHO, कहाँ पे हैं वो लोग? और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहराओं में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले, और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा, आप चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं, आपके बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने कल मीडिया से बात की, उन्होंने कहा एक तो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, दूसरी अंदरूनी लड़ाइयाँ इस हद तक चली गई है कि हवाद अजहर जैसे लीडर का जो इस्तीफा तो गोनर से ज़रा पीछे हो जाए, कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा मकसद, हमारा नजरिया इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं, और हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं आपको बता दूं, इस पार्टी के अंदर लीडर सिर्फ वजीर आजम इमरान खान है, बाकी मुझ समेत सब लोग कारकुन हैं जो उस लीडर के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। देखिए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों पर रोशनी डालने से पहले कम से कम ये लोग मुझे इस बात का जवाब दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आज जो टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए रेमेडी क्या की गई है। ठीक है, मुझे ये इसका जवाब दे देते कि ड्रोन हमले में जो हमारे आम लोग, मासूम शहरी मरे, उनके लिए क्या किया गया, या मुझे इसका जवाब दे देते कि डॉक्टर मारंग बलोच को आप कब रिहा करके बलूचिस्तान में अमन लेकर आएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जिद्दोजहद है, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हमाद भाई मेरे भाई हैं, बाकी भी पंजाब के जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी हम साथ हैं। एक मकसद है हमारा, और वो वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं कोई चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ, और कारकुन होने में मुझे फख्र है। ये ओहदा अवाम के लिए। पंजाब में जो घर तोड़े गए उनका भी जिक्र कर लें। पंजाब देखिए, मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि जाहिर है अगर हमारी खान साहब से मुलाकात होती तो बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर बात होती, और मैं सिर्फ इस वक्त सबसे यही कहूँगी, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए सोचने का। ना आलिया हमजा रेलेवेंट है, ना कोई और रेलेवेंट है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बता दें, पंजाब में आपने अफ्तार पार्टियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, फातिहा ख्वानियों पर जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिसाल मिलती है कि घरों के ऊपर रेड किए जाए इसलिए कि आप लोग अफ्तारियां करा रहे हैं। इनका घर मैं देख कर आई हूँ, चिकना चूर कर दिया गया। क्या था? अफ्तार रख लिया।
اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں اس ملک کو آگے جانے دیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمارا فوکس, ہمارا ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان.